Very beautiful. Good morning, class 11 biology students. Now we are going to start our next topic, that is Pteridophyta. As the word indicates, pterido means feathery and phyta means plants. It means these are feathery plants which have feathery appearance. Basically, Pteridophyta are present on the damp and moist places, and basically they are the ornamental plants, and they are adhesed on the soil with the help of the roots, and basically they prevent the soil erosion. These are the first land plants which have vascular bundles. ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, पहले ऐसे लैंड प्लांट्स हैं. बेसिकली दे हैव द फुल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, पूरी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है, एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज द जाइलम एंड फ्लोएम. हर एक पार्ट में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स एवरी बॉडी पोर्शन हैज अ ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू टू कैरी द फूड, वाटर, मिनरल एंड डिफरेंट थिंग्स. बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट द रूट, स्टेम एंड लीव, अगर हम बात करें रूट, स्टेम और लीव की, इसमें स्पेशल चीज़ जो है वो है इसकी लीव्स. देयर आर टू टाइप ऑफ लीव्स इन द टेरिडोफाइटा. दो तरह की लीव्स होती हैं टेरिडोफाइटा में. फर्स्ट आर द माइक्रोफिल्स विच आर बेसिकली प्रेजेंट इन द हॉर्सटेल्स में प्रेजेंट होती हैं, एंड अनदर आर मैक्रोफिल्स विच आर प्रेजेंट इन फंस. मैक्रो मीन्स छोटी छोटी लीव्स होती है, मैक्रो मीन्स बड़े साइज में लीव्स होती है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ लीव्स इन दीज प्लांट्स. रूट्स आर प्रेजेंट, स्टेम आर प्रेजेंट. इट मीन्स दे हैव फुल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी. पूरी बॉडी जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड होती है. Previously, when we have discussed the Bryophyta, I told you that the main body of Bryophyta is the gametophytic body. It means the number of chromosome are half, haploid body होती है उनकी. But in case of Pteridophyta, the main plant, जो उसका main plant है वो कैसा होगा आपका 2n. It means the main plant body is sporophyte. जो main plant body है उसकी वो कैसी है? Sporophyte. These sporophyte, ये जो sporophyte हैं, these sporophyte contains sporangia. इन sporophytes में क्या प्रेजेंट होती हैं? sporangia प्रेजेंट होती हैं, and these sporangia are covered by the cluster of leaves, and these type of leaves which contain these sporangia, these are known as स्पोरोफिल्स. स्पोरो मीन्स स्पोरेंजिया, फिल्स मीन्स लीव्स. इट मीन्स ऐसी लीव्स जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, उसको कहते हैं हम स्पोरोफिल्स. बेसिकली इफ दीज स्पोरोफिल्स आर लूजली कनेक्टेड, अगर ये स्पोरोफिल्स, ये लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, अगर ये लूजली कनेक्टेड हैं, देन दे मेक द स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलाई. ये क्या बनाती हैं? स्ट्रोबिलाई. इफ दीज आर टाइटली कनेक्टेड, अगर ये टाइटली आपस में जुड़ी हुई हैं, देन they make the structure which is known as cone, जिसको हम क्या बोलते हैं? cone. Now we will discuss all other things about the Pteridophyta in the life cycle of Pteridophyta. So I am giving you a life cycle diagram by which you can easily learn all the phases of Pteridophyta plant. You can see the life cycle of Pteridophyta, not diagrammatic, only written life cycle is there. If you want, then you can write your demand in the comment section. I will give you the diagrammatic life cycle also. So, but you can learn the life cycle by this method very easily. Okay. The main plant body of the Pteridophyta is the sporophyte. It means diploid 2n. Now in this plant, sporophylls are present. In plants में क्या present होती है? Sporophylls. It means the leaves which contain the sporangia. Inside these leaves, sporangia are present. Now inside this sporangia so many spore mother cells are present. बहुत सारी spore mother cells present होती हैं which conduct reduction, division और meiosis by which spores are formed. जिससे क्या बनते हैं? spores बनते हैं. Now you can see all these are diploid in nature, but these spores are formed by the meiosis. That's why these are haploid in nature. Now these spores start to germinate and make the another plant body which is small, inconspicuous but self-dependent. This structure is known as prothallus. It means now this plant entered into the gametophyte condition. इससे आगे बढ़ने से पहले एक बात बताती हूँ मैं आपको. In some plants, in some Pteridophyta, two type of spores are formed. दो तरह के spores बनते हैं, अलग से यहाँ पर बता देती हूँ मैं. First is the microspore and another is the megaspore.
इट मीन्स जो मैंने अभी यहाँ पर बताया वो आपकी कौन सी कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, जहाँ पर मेल फीमेल एक ही थैलस में, एक ही प्रोथैलस में प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर स्पोर अलग अलग तरह के बने, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बने, छोटा और एक बड़ा स्पोर बना, देन माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल प्रोथैलस। माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा, मेल प्रोथैलस में डेवलप होगा। और जो मेगास्पोर है वो किस में डेवलप होगा, फीमेल प्रोथैलस में डेवलप होगा। इट मीन मेल फीमेल दोनों प्रोथैलस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर सेम है प्रोथैलस, एक ही स्पोर से बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा, एंथ्रीडी आर्चिगोनिया एक ही प्रोथैलस में प्रेजेंट होगी। बट इन दिस केस, अगर ये केस है, माइक्रोस्पोर अलग है, मेगास्पोर अलग है, एट दैट टाइम द प्रोथैलस आर डिफरेंट। इट मीन्स द आर्चिगोनिया एंड द एंथ्रीडी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट थैलस, ऑन द डिफरेंट प्रोथैलस। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया क्या होंगी, अलग अलग थैलस पर प्रेजेंट होंगी। नाउ एंथ्रीडिया इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, Archegonia is the female reproductive part. Now the Antheridia produces the anthrazoid, which are the male gametes, and the Archegonia produces the egg, which are the female gametes. Now for the fusion of these two different type of gamete, there is a requirement of water. It means the fusion of male and female gamete occur in the water. जो fusion होता है मेल और फीमेल gamete का, वो कहाँ पर होता है, water में होता है। And when they fuse together, they form the diploid zygote. It means again the sporophytic condition कम्स, दोबारा से फिर से क्या आ जाती है, आपकी स्पोरोफिटिक कंडीशन आ जाती है। नाउ दिस जाइगोट स्टार्ट टू डेवलप, ये जाइगोट फिर से डेवलप होना शुरू करता है, एंड इट चेंजेस इनटू एम्ब्रियो। ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। एंड अगेन दिस एम्ब्रियो शो सो मेनी चेंजेस इन इस स्ट्रक्चर। ये एम्ब्रियो अपनी स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस शो करता है, और एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे हमें इसकी सीड जैसी हैबिट दिखाई देती है। इट मीन्स एक ऐसा इंडिकेटर है जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है इसके एम्ब्रियो में, उस तरह का डेवलपमेंट जो आपको आने वाले प्लांट्स में देखने को मिलता है। और ये सीड लाइक स्ट्रक्चर, जो सीड हैबिट शो कर रहा है एम्ब्रियो, फाइनली किसमें चेंज हो जाता है, प्लांट बॉडी। इट मीन्स स्पोरोफाइट में चेंज हो सकता है। नाउ आई हैव डिवाइडेड द होल लाइफ साइकिल इनटू टू पार्ट। इतना जो पार्ट है आपका वो किसको शो कर रहा है, स्पोरोफाइट फेज को शो कर रहा है। इट मीन्स डिप्लॉयड कंडीशन को शो कर रहा है, जबकि जो इतना पार्ट है वो किसको शो कर रहा है, हैप्लॉयड कंडीशन को। तो आप इससे देखकर ये पता कर सकते हो कि डिप्लॉयड कंडीशन इसमें ज्यादा देर के लिए रही और हैप्लॉयड कंडीशन थोड़े टाइम के लिए आई। तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है उसको नाम देते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लो आगे से लिखा है क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन ज्यादा टाइम के लिए रही है, हैप्लॉयड कंडीशन कम। अगर हम बात करें हैं ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा में उल्टा था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, क्योंकि वहां पर हैप्लॉयड कंडीशन ज्यादा टाइम के लिए रही थी और डिप्लॉयड जो है वो कम टाइम के लिए रही थी। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा प्लांट बॉडी which contain the sporophylls, it means which have sporangia. Sporangia have spore mother cells which by the process of meiosis changes into spores. Spore germinate to give rise prothallus, that is the gametophytic condition. On the prothallus, on the same prothallus or on different prothallus, male and female reproductive parts are present, which are Antheridia and Archegonia. They produce male and female gametes, and in the presence of water, the male and female gamete fuses together to form the zygote. This zygote develops into embryo, and embryo finally changes into the main plant body. So this is the life cycle of Pteridophyta. So next time we are going to discuss the gymnosperm. Till then, goodbye. Have a beautiful day.